Hello students, my name is Nitin and I am your social science teacher. We are recording a video for class 10 standard that is from civics notebook and chapter is chapter number 6 political parties. This is going to be our first third chapter on the YouTube and as well as on the online classes. So please support us and like and comment and share. So let's start the chapter political parties. So we have already covered this chapter in 9th standard and had given you a brief overview of the chapter. In this session we will discuss it in a broad way. In this video we will cover 4 subtopic of the chapter, that is definition of the political parties, features of the political parties, function of the political parties, necessity of the political party in a system, and we will also take a conclusion question of the whole session. So starting with the first subtopic, that is the definition part. So in general we all know that political party is a group of people which come together and contest the election and form the government and use the power of the government. So as an exam point of view we will add some more points to the definition. So the first point is, as you can see on the screen, a political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. यानी कि political party बेसिकली क्या होता है, पीपल्स का ग्रुप होता है जो आपस में मिलते हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट की पावर को यूज करते हैं. सेकंड पॉइंट, they agree on some policies and program for the society with a view to promote the collective goods. और ये जो पीपल्स होते हैं ये एक्चुअली एग्री करते हैं कुछ पॉलिसी को लेकर, कुछ प्रोग्राम्स को लेकर जो वो कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी एंडोर्स करती है, प्रमोट करती है. थर्ड, सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, पार्टीज ट्राई टू परस्यू पीपल व्हाई देयर पॉलिसी आर बेटर देन अदर्स. और एक्चुअली नेचुरली होता है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग जो एजेंडा होते हैं उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट होते हैं, अलग अलग व्यूज होते हैं उस सब्जेक्ट को लेके. तो पॉलिटिकल पार्टी अपने व्यूज को प्रमोट करती है और उसी बिहार पे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती है. लास्ट पॉइंट इज सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शन. और इन व्यूज को, इन एजेंडा को प्रमोट करते हुए वो ये चाहते हैं कि लोग उनको एडमायर करें, उनको सपोर्ट करें और उस बिहार पे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं. So this is all about the political party as a definition point of view. Now move to the next subtopic, that is features. What are the features of the political party? The features means that which actually visible in all political party, whether it be Indian political party or any other country's political party. So the features, the first feature is the party reflect fundamental political division in a society. क्योंकि political party is also a part of a society. Actually, political party is also a part of the society. So the political party reflect the fundamental political division. जो society में जो political division होता है, जो अलग अलग point of view होता है, उसको develop करने का काम political party ही करती है. Second feature है political party का, parties are about a part of the society and thus involve partnership. Partnership मीन्स पॉलिटिकल पार्टी क्या एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है, तो वहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क होता है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप मस्ट नेसेसरी होती है. तो पार्टनरशिप भी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक फीचर है. थर्ड, दस अ पॉलिटिकल पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसी इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपलोड. और सोसाइटी में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट को लेके पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग स्टैंड होते हैं, अलग अलग पॉलिसी को वो सपोर्ट करते हैं. तो इसी से इनको पॉलिटिकल पार्टी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को, और इसी के बिहाफ पे उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है जो सोसाइटी में डेवलप करते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. So largely there are 3 components of the political party exist in the every political party. The first is the leaders. The first major and main important component of the political party is the leader. यानी कि लीडर यानी कि जो नेता होते हैं वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यानी कि हिस्सा होते हैं पॉलिटिकल पार्टी का. सेकंड जो कंपोनेंट है द एक्टिव मेंबर्स.
एक्टिव मेंबर्स, वो लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपने पार्टीज के फंक्शन में, उनको बोलते हैं एक्टिव मेंबर्स। एंड थर्ड वन इज द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स द सिटीजन्स हु एडमायर द पॉलिसीज एंड द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द सिटीजन हु वोट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो एवरी पॉलिटिकल पार्टी में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। So now move on the next sub topic, that is function of the political party। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है एक सिस्टम में, वो क्या काम करती है। तो यहाँ पर भी हम उसको पॉइंट वाइज कवर करेंगे। फर्स्ट है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। फर्स्ट मेन फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। ये उनका मेन मोटिव है, यही फंक्शन है उसका कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना और विन करना। In most democracy, election are fought mainly among the candidate put up by the political party। और ज़्यादातर डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इलेक्शन होते हैं, जो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होते हैं, वो कैंडिडेट को नॉमिनेट करना पॉलिटिकल पार्टी ही करती है ज़्यादातर। तो पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर भी एक मेजर रोल है। सेकंड, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फॉर देम। और सेकंड फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, वो अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग व्यू को प्रमोट करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम और पॉलिसी को प्रमोट करते हैं और उनको एडवर्टाइज करते हैं सिटीजन्स के बीच में, और लोग उनको एडमायर करते हैं, उसके बाद उसको सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे उनको वोट देते हैं। ये 2 फंक्शन है। नेक्स्ट थर्ड, पार्टी प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री के लिए जो कुछ रूल्स बनते हैं तो उनके पीछे मेन जो जिसका वर्क होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है। जैसे अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो जो भी रूल्स बनाती है तो कहीं ना कहीं उसमें उसकी जो पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसका रोल है। फोर्थ फंक्शन है पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। प्रैक्टिकली क्या होता है कि एमपी और एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और वही जीत के आते हैं और वही गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी उनको कंट्रोल करती है। किसे, फॉर एग्जांपल जैसे एमपी में या किसी भी अदर स्टेट में इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं और इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आती है, तो जब उससे पत्रकार पूछते हैं कि सर आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो या मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, सभी को पता है कि लीडर कौन है, और सभी को ये पता होता है कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है। लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट खुद ये नहीं बोलते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ या मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। तो वो उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई होता है कि जो भी हाई कमान या जो हमारी जो लीडरशिप डिसाइड करेगी वही हमारा डिसीजन होगा, वही तय करेगी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का इनडायरेक्ट रोल है गवर्नमेंट को चलाने में, वही डिसाइड करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टी इन द पावर। अब जब भी इलेक्शन होता है तो ऐसा तो है नहीं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी और गवर्नमेंट में आ जाएगी। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाती है तो वो बनाती है अपोजिशन। और अपोजिशन का काम क्या है, क्रिटिसाइज करना पॉलिटिकल जो पार्टी जो पावर में है, जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसको क्रिटिसाइज करना। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट द इशू। और पॉलिटिकल पार्टी का और फंक्शन क्या है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना है और इश्यूज जो हैं, जो ग्राउंड पे जो इशू अलग अलग उनको रेस करना, उनको हाईलाइट करना है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें क्या क्या लोगों को इशू आ रहे हैं तो उसको हाईलाइट करने का काम कर रही है अपोजिशन पार्टी। पार्टीज हैव लैक ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। लास्ट इसका पॉइंट है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट। यानी कि इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट की मशीनरी को सिटीजन्स के यूज करने के लायक बनाती है और वेलफेयर जो स्कीम होती है वो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी ही सिटीजन तक पहुंचाती है। तो ये कुछ फंक्शन थे पॉलिटिकल पार्टीज के। टू द फोर्थ सब टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी।
यानी कि एक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत ही क्या है। तो हमने जो पिछले 3 सब टॉपिक डिस्कस किए, डेफिनेशन, फीचर्स एंड फंक्शन, उसी में से हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है, व्हाई देयर इज अ necessity of the political party in a system. So first point is we can understand the necessity of the political party by imagining a situation without political party. यानी कि हम इमेजिन करें कि अगर किसी सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी हो ही ना तो क्या होगा। इलेक्शन जब कॉन्टेस्ट होंगे तो नॉमिनेशन, जो कैंडिडेट नॉमिनेशन करेंगे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में नहीं होंगे, तो वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट होंगे। तो क्या होगा, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। यानी कि एज ए जब वो एमपी या एमएलए बनेंगे तो अपने एरिया के लिए कुछ काम तो कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। किससे? सिटीजन से। क्यों? क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क करना या डिसीजन को चेंज करना किसी एक एमपी या एमएलए या किसी एक रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं होता। ये कलेक्टिव एफर्ट होता है जिसमें जो गवर्नमेंट के सभी जो एमपी एमएलए होते हैं उनका एक्टिव और इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो कभी भी प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे कि हम ये मेजर पॉलिसी चेंजेस ला सकते हैं। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। और ऐसी कंडीशन में जब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कॉन्टेस्ट होंगे, उसके रिजल्ट आएंगे तो नेचुरली गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन ऐसी बनी हुई गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो भी अनसर्टेन होगी। यानी कि कब तक वो गवर्नमेंट काम करेगी कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा बैकबोन नहीं है जो उनको आपस में जोड़ के रखे, या उनके सब पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग होते हैं तो वो कभी भी एक कलेक्टिव एफर्ट कभी भी नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो जाती है गवर्नमेंट में। Second, the rise of political party is directly linked to the emergence of the representative democracy. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो इमरजेंस हुआ ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कारण ही हुआ है। यानी कि जैसे हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, ऑटोमेटिकली ये पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ और ये प्रैक्टिस में आया। As we have seen, large society need representative democracy. As society become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues. और जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी जिसके लिए हमको गवर्नमेंट बनानी है, जैसे जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती जाएगी तो वहाँ पे उनको उस लार्ज सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स व्यू है उनको गैदर करने के लिए किसी एक एजेंसी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी हमको फील होती है। They needed some way to bring various representatives together so that the responsible government could be formed. और यहाँ पर भी उनको ऐसी जरूरत होगी कि कोई ऐसी एजेंसी हो जो उन रिप्रेजेंटेटिव को, जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है, उनको आपस में जोड़ के रखे ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सके। तो यहाँ पर भी हमको पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी फील होती है। लास्ट पॉइंट है, दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट एंड रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट एंड मेक द पॉलिसी। और यहाँ पर भी इस पॉइंट में भी हमको बताया है कि कोई ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके ताकि वो पॉलिसी और चेंजेस ला सके और लॉ बना सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आर टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल framework of a country. So basically there are three system of the political party. One is single party system, second bi-party system, and third one is multi-party system. So what happened in single party system? In some country only one party contest in the election and win and ultimately use the power of the government. We cannot consider one party system as a good one option because this is not a true democratic option. Any democratic system must allow at least two parties to compete in the election and provide a fair chance for the competing party to come to the power. यानी कि एक पार्टी सिस्टम को हम एक ट्रू डेमोक्रेसी के रूप में अडॉप्ट नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वहां पर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा कि किसी और को चूज करे। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी गलत काम करती है या कुछ गलत पॉलिसी बनाती है तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा, तो वो
उस सिस्टम को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं एज ए ट्रू डेमोक्रेसी। सेकंड है बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम मीन्स a system where two political parties exist and compete for election and use the power of the government. Several other parties may exist in the contest election and win a few seats in the national legislature, but only the two main parties have a serious chances of winning majority of the seat to form the government. यानी कि बेसिकली इस बाई पार्टी सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी हो, लेकिन उनकी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के चांसेस और सीट को विन करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर वो सीट विन भी करती तो भी उनके गवर्नमेंट बनाने के चांसेस बिल्कुल 1% भी नहीं होते। तो यहाँ पे उस सिस्टम को हम बाई पार्टी सिस्टम बोलते हैं, यानी कि या तो एक पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी या फिर दूसरी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, यानी तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। थर्ड टाइप है मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि दो से ज्यादा, where two or more than two party exist, this is called multi-party system. If several parties compete for the power and more than two parties have a reasonable chance for coming to the power either on their own strength or in alliance with other, we call it as a multi-party system. यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे दो से ज्यादा पार्टियां यानी कि compete करती इलेक्शन में और उनके फेयर चांस होते हैं कि कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है या तो अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे या फिर एक अलायंस बना करके। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम अलायंस, यानी कि पार्टी अगर खुद मेजोरिटी में नहीं है तो अलायंस बनाकर गवर्नमेंट बनाती है। तो अलायंस क्या होता है? व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग द पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट। The multi-party system often appears very messy and leads to political instability. At the same time, this system allows a variety of interests and opinion to enjoy political representation. अब जब अलायंस होता है या मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो ये कभी कभी मैसी हो जाता है, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, बहुत सारे एजेंडा होते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कभी हमने देखा है इंडिया के अलग अलग स्टेट में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टी अलायंस बना के जब गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो कभी कभी वो गवर्नमेंट अपने टेन्योर को पूरा भी नहीं कर पाती, यानी कि कंप्लीट 5 ईयर पूरे नहीं कर पाती है। तो एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। और इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या मल्टी पार्टी सिस्टम का कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट को, ओपिनियन को एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम के बेनिफिट्स हैं। नाउ मूविंग टू द कंक्लूजन क्वेश्चन, दैट इज which political party or which political party system is the best one, can we say about it? तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ट है या कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम एज ए कंट्री हमें अडॉप्ट करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि वन पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट, टू पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट और मल्टी पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट। इट एक्चुअली डिपेंड ऑन द history of the country, background of the country, geographic condition of the country, point of view, religion, society of the country. It depends on several factors. So as we can see in China, one party system is working very efficiently. In some European country, two party system is working very efficiently, and in our country like India, multi party system is working in a very efficient manner. So in conclusion, we cannot say that a particular system is best for a democracy or any other form of government. So perhaps the best answer to this is very common question is that this is not a very good question. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long period of time depending on the nature of the society, its social and regional division, its हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई कंट्री अपनी मर्जी से किसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेती है कि हमारा वन पार्टी सिस्टम है या बाई पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम। ये ग्रेजुअली डेवलप होता है सिस्टम। जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, शुरुआत से ये रीजनली डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी के कारण ही मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट हुआ इंडिया में और इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करता है इंडिया में। फॉर एग्जांपल, इफ इन इंडिया
has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in the India. Such a large country is not easily absorbed by two or even three party. No system is ideal for all country and all situation. यानी कि बड़ी कंट्री में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि एक सिंगल पार्टी या टू पार्टी या इवन थ्री पार्टी एफिशिएंटली वर्क कर सके. कहीं कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करता है, कहीं पे सिंगल पार्टी सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करता है. सो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन and demand of the country or the society. So this is all about the first part of the chapter, and the next part we cover in the next video. Thank you for watching us. Please subscribe, like and comment.